बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज, और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो यू शुड इनरोल इन द क्यूए डीमन मेंटरशिप राइट नाउ, बिकॉज फॉर द फर्स्ट 50 demons the cost is only 999, and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time cat aspirant, or a cat repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now. And to enroll in the QA Demon mentorship, you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनको प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए, क्वालिटी कंटेंट एंड क्वालिटी मेंटरशिप चाहिए. फॉलो मी ऑन Instagram and LinkedIn for more interesting content. Hello guys and welcome to the fourth lecture of QA Demon, and in this lecture we are going to learn about time, speed and distance. We are going to cover all the concepts which are required for MBA exams, whether it be CAT, ZAT or any other exam. And we have also covered ratio, proportion, percentage and prerequisites of quants and DLR. So you can also cover those lectures. इसको इससे पहले करके फिर इसको करो. Fine. So let's start with time, speed and distance. What we are going to cover? We are going to cover today time, speed and distance. We are going to see basic formula, average speed, some conversions of units which are required, and concept of proportionality, relative speed, problems on trains, boats and steam, problems on escalators, circular tracks, and problems on races. These are all the basic and important topics which are required for time, speed and distance. And हम जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब तुम लोगों को बता रहे हैं. इसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट और करने का ज़रूरत नहीं है. जितना कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं उतना कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से कर लेते हो, नथिंग इज़ रिक्वायर्ड आउटसाइड दिस. हम भी यही सब कर रहे थे, यही सब करके मेरा भी 99+ परसेंटाइल आया. सो या गाइज, नथिंग टू. मेरे पास ये क्वेरी आ रहा था कि और भी करना होगा, और भी कुछ है क्या, सब हम बता रहे हैं कि नहीं. एक्चुअली हम सब बता रहे हैं. फाइन. सो डोंट वरी एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो वी आर फर्स्ट going to see in today's time, speed, distance lecture the formula of time, speed and distance, which is the most important, जिसके around सब कुछ revolve करता है. तो we will start with the basic formula. The basic formula of time, speed, distance is equal to speed into time. ये variables के form में हम लिखे. If I want to write it, I can write distance is equal to speed into time. Also we can cross multiply and interchange, and we can write it as distance by time is equal to speed. We can also write it as distance by speed is equal to time. ठीक है, बट इसको याद रखना है, इसको. ओके, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. जब हमें वैल्यूज जितना दिया रहेगा उसके हिसाब से वी कैन इंटरचेंज एंड वी कैन राइट अकॉर्डिंग टू इट. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कन्वर्जन्स. Conversions of what? We are going to see conversion formulas of time, speed, distance. ठीक है, क्योंकि कभी कभी ऐसा रहता है कि स्पीड मीटर पर सेकेंड में दिया रहेगा, तुमको किलोमीटर पर आवर में करना पड़ेगा. या फिर ऐसा हो सकता है कि टाइम सेकेंड में दिया हुआ हो एंड डिस्टेंस किलोमीटर में दिया हुआ हो, तो तुमको दोनों में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा. या तो किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, या तो सेकेंड को आवर में करना पड़ेगा. ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज स्पीड का जो यूनिट है उसका हमें ध्यान रखना है. स्पीड का यूनिट या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए. किलोमीटर पर सेकेंड या मीटर पर आवर में नहीं हो सकता है. यही दोनों में से कोई एक यूनिट में होना चाहिए. ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है. क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी इस बात का हमें ध्यान रखना है. तो लेट्स स्टार्ट विथ डिस्टेंस. डिस्टेंस के कन्वर्जन के लिए सिंपल, किलोमीटर, मीटर एंड सेंटीमीटर. हमें जिस तरीके से हम लिख रहे हैं उस तरीके से याद रखना है, क्योंकि प्रॉब्लम नहीं होगा. ऐसे याद करने में आसानी होता है. ऊपर की तरफ मल्टीप्लाइड बाई 1000, दिस मल्टीप्लाई बाई 100, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 1000. यहाँ से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से हम लोग ऐसे जा रहे हैं,
यहाँ से हम लोग ऐसे जा रहे हैं. व्हाट डज इट मीन? जब हमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1000. जब हमें मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100. जब हमें सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 100. जब हमें मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू डिवाइड बाय 1000. सो डिस्टेंस का कन्वर्जन हमें ऐसे करना है. इसका एक सिंपल ऐसे ही हम बता दे रहे हैं. सपोज कि हमें दिया हुआ है कि 2 किलोमीटर्स है, तो 2 किलोमीटर्स इज इक्वल टू 2000 मीटर्स, एंड 2000 meters is equal to 2000 into 100 centimeters, which is 2 lakh centimeter. Fine. So this is, we are going to convert according to the question. जैसा ज़रूरत है वैसा करना है. Now we are going to see time, conversion of time. तो टाइम में क्या होता है? आवर, मिनट, सेकेंड, यही 3 होता है. एंड उसमें कुछ नहीं होता है. मल्टीप्लाई बाई 60 to go down the line and divide by 60 to go up the line. आवर से मिनट में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, मिनट से सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाई 60, सेकंड से मिनट में जाने डिवाइड बाई 60, एंड मिनट से आवर में जाने के लिए डिवाइड बाई 60. अगर आवर से सेकंड में डायरेक्ट जाना हो तो मल्टीप्लाइड बाई 3600. क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बार 60 मल्टीप्लाई, 2 बार 60 मल्टीप्लाई, तो 60 इंटू 60 3600. ओके. सो अगेन हमें सिमिलर वे में कन्वर्ट करना है. अब हम स्पीड का देखेंगे. स्पीड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्पीड का बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगता है ऑल्सो इंपॉर्टेंट. सब कुछ है, सब कुछ तुमको पता होना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा काम आता है. स्पीड का क्या काम आता है? स्पीड का हमें यूनिट पता है, या तो किलोमीटर पर आवर में होगा या तो मीटर पर सेकेंड में होगा. ठीक है, यही दोनों में से हमको कन्वर्ट करना है. ओके. तो अगर हमारे पास किलोमीटर पर आवर में दिया है, उसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हमें मल्टीप्लाई बाई 5/18 करना है. ओके. और अगर हमें मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो हमें डिवाइड बाई 5/18 करना है. ओके. ये हमें करना है. अब कहीं कहीं ऐसा दिया हुआ रहता है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए तो 5/18 ही मल्टीप्लाई करना है, बट मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 18/5 करना है. ये और ये दोनों सेम ही बात है. क्यों? क्योंकि आप किसी नंबर को डिवाइड बाई 5/18 कर रहे हो तो वो ऊपर चला जाएगा एंड वो n इंटू 18/5 ही होगा, जो कि यहाँ पे हमने लिखा है. ठीक है, तो सेम ही बात है. बट 5/18 हम इसीलिए लिखते हैं और याद रखते हैं क्योंकि हमको दोनों नंबर याद नहीं रखना पड़ता है. कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे कन्फ्यूजन हो जाता है कि अच्छा 5/18 था कि 18/5 था. हमको वो कन्फ्यूजन नहीं चाहिए था, तो हम सिर्फ 5/18 याद रखें. किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 5/18, एंड मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाने के लिए डिवाइड बाय 5/18. फाइन. आई होप कि ये सब क्लियर होगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड. सो एवरेज स्पीड हम लोग देखने वाले हैं. एंड टाइम स्पीड डिस्टेंस में जितना भी चीज़ हम लोग सीखेंगे सब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम से ही डिराइव्ड रहता है. हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, ये फॉर्मूला एकदम भूलना नहीं है. फाइन. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. एंड एवरेज स्पीड क्या है? स्पीड ही है. तो हमें मान लेते हैं एवरेज स्पीड ही है. तो एवरेज स्पीड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? एवरेज स्पीड का एक्चुअल मतलब होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन. What is average speed? I will write it. Average speed is total distance covered divided by total time taken. This is the formula of average speed. हमें हमेशा यही दिमाग में रखना है. एक शॉर्टकट है, एक इसका शॉर्टकट भी है, बट वो एक सिचुएशन में ही अप्लाई होता है. फॉर एग्जांपल कि एक स्पेसिफिक डिस्टेंस है. ओके. स्पेसिफिक डिस्टेंस है d. वो s1 स्पीड से गया और s2 स्पीड से आया. ठीक है. तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, सबसे पहले उसने d डिस्टेंस कवर करा s1 स्पीड से, तो d. ठीक है. अगर हम लोग देखें तो फिर वापस आया, डी डिस्टेंस कवर करा, तो फिर उसने डी कवर करा. एंड स्पीड हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल टाइम. और टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड. तो डी बाई S1 प्लस डी बाई S2.
इससे इसको सॉल्व करेंगे, डी कट जाएगा, फिर हमें मिल जाएगा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और वो आता है हमारा जब हम सेम डिस्टेंस जा रहे हैं और आ रहे हैं, तो तब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आता है 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। ठीक है, ये कब आता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला? व्हेन डिस्टेंस इज सेम। किस चीज़ का? आगे जाने का और पीछे आने का। ठीक है, ये जब डिस्टेंस सेम रहता है तभी हम ये वाला एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। फाइन, 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। ठीक है, बाकी कोई भी केस हो, हर केस में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, हर केस में ये वाला अप्लाई होगा। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई टोटल टाइम टेकन। अब हम और एक चीज़ देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका मतलब क्या है? अगर रेशियो प्रोपोर्शन वाला लेक्चर देखा होगा तो वहाँ पे हमने सीखा था कि प्रोपोर्शनैलिटी मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब अगर A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B, तो इफ़ A इज़ इंक्रीजिंग B इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग, इफ़ A इज़ डिक्रीजिंग B इज़ ऑल्सो डिक्रीजिंग। ठीक है, बट इन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफ़ A इज़ इंक्रीजिंग B इज़ डिक्रीजिंग, एंड इफ़ B इज़ इंक्रीजिंग A इज़ डिक्रीजिंग। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो आप देखें, आपको समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में हम प्रोपोर्शन के साइन को हटाने के लिए कॉन्स्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली हमारे पास डिस्टेंस एंड डिस्टेंस इक्वल टू मतलब कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में ऐसा बहुत बार सिचुएशन आता है कि हमारे पास दिया हुआ है डिस्टेंस कांस्टेंट। ठीक है, और केस 1 में स्पीड कुछ और है, केस 2 में स्पीड कुछ और है, और टाइम भी कुछ और है, और केस 2 में भी टाइम कुछ और है। तो हम क्या करते हैं उस पॉइंट पे? हम d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इन फर्स्ट केस, d इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम इन सेकेंड केस, एंड इसको और इसको इक्वेट कर देते हैं। तो s1 इंटू टी वन इज इक्वल टू s2 इंटू टी टू। उसके बाद जैसा क्वेश्चन रहता है उस हिसाब से सॉल्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो कांस्टेंट वाला बात आ जा रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। कांस्टेंट मतलब सेम होना। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जब हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो हमेशा सेम ही रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग S1 S2 करके बात करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हम बोले कि दो केस रहता है, उसमें कि कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट रहता है, तो फिर हम दो इक्वेशन को मिला के लिखते हैं। तो सपोज कि टाइम इज कांस्टेंट, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है उसमें टाइम इज कांस्टेंट। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। टाइम सेम है दोनों में, बट डिस्टेंस और स्पीड सेम नहीं है। ये हो गया। उसके बाद टाइम सेम है, तो d1 बाई s1 इज इक्वल टू d2 बाई s2। ये आ गया। ओके, इसको ना याद नहीं रखना है, लॉजिकली याद रखो कि हम दो इक्वेशन बनाए और उसके बाद टाइम को इक्वेट कर दिए दोनों में, और उसको अगर तुमको ये नहीं समझ में आया कि ये इक्वेशन कहाँ से है, तो हम यहाँ पर दिखा रहे, देखो d1 बाई s1 इज इक्वल टू t फ्रॉम दिस इक्वेशन, and d2 by s2 from equation d2 by s2 is equal to t again from this equation. Now we are equating t and t, so we get this. Fine. तो ऐसा आया हमारे पास। यहाँ पे ये याद नहीं करना है तुमको, ये दिमाग में ऐसे नहीं कि छाप के बैठ गए, तुमको ये लॉजिकली समझना है कि जब हमें कोई चीज़ कांस्टेंट मिले तो उसको हमको इक्वेट करना है। अब टाइम कांस्टेंट रहता है तो हम लोग को समझ में आ गया कैसा करना है। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट। तो अब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो d इज इक्वल टू s1 इंटू टी वन, d इज इक्वल टू s2 इंटू टी टू। नाउ d इज सेम, सो वी विल इक्वेट बोथ द इक्वेशंस एंड वी विल गेट s1 इंटू टी वन इज इक्वल टू s2 इंटू टी टू। फाइन। नाउ वी विल सी व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। व्हेन स्पीड is constant, again similar, distance is not constant, speed is constant,
and time is not constant. Again, distance is not constant, speed is constant, and time is not constant. We will equate for speed and we will get d1 by t1 is equal to d2 by t2. So we got this equation. फाइन. इसमें से ज़्यादातर इसका यूज़ करा जाता है. डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जो कि हम पहले ही बोले, ज़्यादातर इसका यूज़ करा जाता है, बट तीनों ही पता होना चाहिए. ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. ओके, कितना नंबर. ओके, आई डोंट नो कितना नंबर. लेट्स गो विथ 3. तुम लोग चेक कर लेना सीरियल नंबर कितना हो रहा है एंड कितना नहीं. फाइन. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड. अब तुम बताओ मुझे कि कॉन्सेप्ट मतलब रिलेटिव स्पीड से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है. रिलेटिव, जब यहाँ पे रिलेटिव वर्ड आ रहा है तो तुमको उसका मतलब क्या समझ में आ रहा है. सबसे पहले जो वर्ड है ना, उसका मतलब पता होना चाहिए. उसका मतलब पता है तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आएगा ही. रिलेटिव का मतलब ये है कि किसी और के रेस्पेक्ट में रिलेटिव हुआ. मेरा कहने का मतलब है कि मान लो हम ऐसे ही रैंडम एग्जांपल दे रहे, कंपैरिजन कर रहे कि ही प्लेज क्रिकेट बेटर देन हिम. वो ज़्यादा दूर तक छक्का मारता है एज़ कम्पेयर टू द अदर प्लेयर. वो ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करता है एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर. तो हम कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस इज़ अ रिलेटिव कंपैरिजन. ठीक है, दिस इज़ अ रिलेटिव कंपैरिजन. सो वी आर गोइंग टू डू दिस इन दिस कॉन्सेप्ट. यही होता है और इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होता है. इसके पहले तो अभी हम बेसिक्स ही देख रहे थे, इसके ऊपर मेन गेम चालू होता है. मेन गेम अभी अगर हम तुमको एग्जांपल देना चाहे, मेरा कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब है कि जो वो क्वेश्चंस होते हैं ट्रेन्स वाले, कि एक ट्रेन एंड दो ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इतना इतना स्पीड है दोनों का, एंड कितना देर में वो मिलेंगे. ठीक है, दिस इज़ अ वेरी बेसिक क्वेश्चन. या फिर ये दोनों ट्रेन है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कितना टाइम के बाद मिलेंगे. एक चोर है, वो इतना बजे भाग गया और सर्टेन टाइम के बाद पुलिस उस जगह पे आया एंड वो उसको उतना स्पीड से चेज करना चालू करा, तो कितना टाइम के बाद वो चोर को पकड़ लेगा. ये सब रिलेटिव स्पीड से सॉल्व होता है. ठीक है, और थोड़ा लॉजिकल दिमाग लगाने से ही सॉल्व हो जाता है, उतना हार्ड नहीं है कुछ. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड विच इज़ वेरी सिंपल. सब कुछ सिंपल है, बस इसको खोल के रखना है ताकि इनपुट्स ले पाओ. ओके, तो रिलेटिव स्पीड वही हम देखेंगे कि दो व्हीकल की स्पीड एक दूसरे के रेस्पेक्ट में. ठीक है, स्पीड ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट एज कंपेयर टू अदर, जो कि हम अभी बोल रहे थे. तो इसका फर्स्ट केस वो होता है जब दो ऑब्जेक्ट्स या फिर मान लो कि दो कार है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो इसका फर्स्ट केस है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं. अपोजिट डायरेक्शन में मान लो कि एक का स्पीड है S1, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक का स्पीड है S2, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये भी वो अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, और स्पीड है S1, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड है S2, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन हुआ ना. ये दोनों एग्जाम्पल किसका है, अपोजिट डायरेक्शन का है. ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो रिलेटिव स्पीड होता है वो ऐड हो जाता है, वो S1 प्लस S2 हो जाता है. ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, लॉजिकली सोचो ऐसा क्यों होता है. जब कुछ भी सीख रहे हो तो सोचो कि ऐसा क्यों होता है. ऐसा इसीलिए होता है कि लॉजिकली सोचो. जब तुम ट्रेन्स में बैठते हो फॉर एग्जांपल, तो तुम ट्रेन में बैठे रहते हो और एक ट्रेन खड़ा है प्लेटफॉर्म पे और तुम्हारा ट्रेन सामने से क्रॉस कर रहा है. तो तुमको लगेगा कि एक सर्टेन स्पीड में तुम पार कर रहे हो, उसको क्रॉस कर रहे हो. ठीक है, बट वही जब तुम एक सर्टेन स्पीड से जा रहे हो और वो भी एक सर्टेन स्पीड से जा रहा है, तो लॉजिकली ये बताओ कि पहले से जल्दी क्रॉस करोगे ना, तुमको और ज़्यादा तेज़ दिखेगा जाते हो, क्योंकि वो भी एक सर्टेन स्पीड से क्रॉस कर रहा है तुम्हारे उल्टे डायरेक्शन में. तो क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन में जब तुम लोग जा रहे थे, तो रिलेटिव स्पीड ऐड हो गया ना. तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होता है. ठीक है, अगर एग्जांपल लेकर बताए तो सिंपल एग्जांपल यही होगा कि मान लो S1 है 150 एंड दिस इज 170. ठीक है, तो कुछ नहीं, क्या होगा, ऐड हो जाएगा. ऐड होके कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड
320 हो जाएगा। अब इस रिलेटिव स्पीड का क्या करना है? इस रिलेटिव स्पीड का ये करना है कि दोनों ट्रेन के बीच में जितना डिस्टेंस है, हम तो यही फॉर्मूला लगाएंगे ना, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या होता है? जो दोनों ट्रेन के बीच का डिस्टेंस होता है। स्पीड हम रिलेटिव स्पीड यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पीड हम ये वाला स्पीड यूज़ करते हैं, ना ये वाला यूज़ करते हैं ना ये वाला यूज़ करते हैं। स्पीड हम रिलेटिव वाला यूज़ करते हैं, जिससे हमें टाइम का वैल्यू मिल जाता है। तो हम इस तरीके से यूज़ करते हैं रिलेटिव स्पीड का अपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंड केस हम लोग देखेंगे जब डायरेक्शन हो सेम। तो सेकेंड केस क्या है? सेम डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? जब पहले वाला केस में ऐड हुआ है तो इसमें क्या होगा? नहीं, इसमें माइनस हो जाएगा, सिंपल सा बात है। तो रिलेटिव स्पीड इसमें हो जाएगा S1 माइनस S2। ऑब्वियसली पॉजिटिव में रहेगा क्योंकि स्पीड नेगेटिव में नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पीड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। इसमें फिजिक्स के ये से देखें तो वो अलग बात होता है कि एक तरफ को पॉजिटिव मानते हैं, दूसरा तरफ को नेगेटिव मानना पड़ता है। बट यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। फॉर दोज जो थोड़ा साइंस बैकग्राउंड से है, जिनको डायरेक्शन का वेलोसिटी का नॉलेज है कि वेलोसिटी में डायरेक्शन रहता है, तो इधर पॉजिटिव मान रहे तो इधर नेगेटिव मानना होगा। यहाँ पे वो सब नौटंकी नहीं करना है, यहाँ पे हर तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। ये जो वैल्यू है, सॉरी गाइस, ये जो वैल्यू है ये हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। जिसका स्पीड ज़्यादा है उसको आगे रखो, जिसका स्पीड कम है उसको पीछे रखो। अगर S2 ज़्यादा है तो S2 माइनस S1 करो, S1 ज़्यादा है तो S1 माइनस S2 करो। रिलेटिव स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहेगा। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है कि S1 इस तरफ जा रहा है एंड S2 भी इस तरफ जा रहा है। सिमिलरली S1 इधर जा रहा है एंड S2 भी इधर जा रहा है। ओके, इसके बीच में एक छोटा सा लाइन बना देते हैं ताकि, है ना, कन्फ्यूजन ना हो। एक अच्छा सही लाइन बना देता है। ओके, बन गया। तो ये था रिलेटिव स्पीड, ठीक है। अब यहाँ रिलेटिव स्पीड जो लगता है वो कैसे लगता है, बस हम ऐसे ही बता रहे हैं। रिलेटिव स्पीड जो लगता है वो, उसको लगाने के लिए टाइम प्लेटफॉर्म को सेम करना पड़ता है, ठीक है। मतलब कि दोनों का सेम टाइम पे स्टार्ट होना चाहिए, सेम टाइम से चालू होगा तो वहाँ पे हम लोग रिलेटिव स्पीड लगाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, एक एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल से हम लोग अब बात करने वाले हैं। समझ लो कि दो ट्रेन है, ओके। एक ट्रेन यहाँ पर है, एक ट्रेन यहाँ पर है, एंड दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 380 किलोमीटर्स है, ओके। एंड इसका, ये जो ट्रेन है इसका स्पीड है 70 किलोमीटर्स पर आवर एंड इसका स्पीड है 85 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है और ये इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, बट यहाँ पे कैच ये है कि ये 5:30 AM में निकला है अपने प्लेटफॉर्म से और ये 6:30 AM में निकला है, ओके। तो यही है क्वेश्चन। अब तुमको बस पूछा गया कि कितने टाइम में वो लोग मिलेगा, ठीक है, कितने टाइम के बाद वो लोग मीट करेगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे तुम अगर ऐसा करते हो कि अच्छा डिस्टेंस 380 किलोमीटर्स और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन, एंड ऐड कर देंगे 70 प्लस 85 करके यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लिख देंगे और टाइम निकाल देंगे, तो गलत हो जाएगा वो, ओके। वो हो जाएगा गलत। तो करना क्या है? करना ये है कि तुमको टाइम प्लेटफॉर्म को सेम करना है। ये चीज़ को याद रखो। हम यहाँ पे एक नोट्स बना के छोटा सा लिखते हैं कि टाइम प्लेटफॉर्म को सेम करना है, ओके। इसको अपने दिमाग में रखो, क्वेश्चंस में बहुत हेल्प आएगा। तो ये कैसे बनेगा टाइम प्लेटफॉर्म को सेम करने के लिए? ये तो 6:30 AM में निकल रहा है, लेट निकल रहा है। ये 5:30 AM में निकल रहा है, तो इसको 6:30 AM में ले आते हैं। तो 70 किलोमीटर्स पर आवर ट्रैवल कर रहा है, एक घंटे में कितना ट्रैवल करेगा? 70। तो 70 ट्रैवल करेगा, तो मान लो कि ये 70 किलोमीटर्स ट्रैवल कर गया, तो बचा कितना? बचा 310 किलोमीटर्स। 380 माइनस 70, 310 किलोमीटर्स। नाउ हम लोग वो लगा देंगे, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस है हमारे पास 310 किलोमीटर्स एंड स्पीड हमारा रिलेटिव लगेगा जो कि हो जाएगा 70 प्लस 80 हो जाएगा 155 और किलोमीटर पर आवर, और ये हो जाएगा टाइम जो कि रहेगा आवर में, ठीक है। तो टाइम हमें आवर में ही मिलेगा, ये किलोमीटर किलोमीटर कट जाएगा और फिर ये आवर इधर आ जाएगा, तो इस पर ध्यान मत दो। तो टाइम कितना हो जाएगा? टाइम हो जाएगा 310 बाई 155 विच कम्स आउट टू बी 2 आवर्स, ओके। दिस इज आंसर। इसमें टेक अवे क्या था? टेक अवे था ये था टेक अवे,
इस चीज़ पे ध्यान दो, टाइम प्लेटफॉर्म को सेम करना है, ठीक है। क्वेश्चन पे यहाँ पे क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है ना कि क्वेश्चन देख के रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट ही दिमाग से निकल जाता है, फिर पता नहीं खाली डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, उसमें फंसे रह जाते हैं लोग। ये रिलेटिव स्पीड बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिमाग में होना चाहिए, और ये टाइम प्लेटफॉर्म को सेम करना है, ये भी दिमाग में होना चाहिए। हर क्वेश्चन में नहीं करना होता, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में करना होता है, तो ये पता होना चाहिए। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। आई डोंट नो कितना नंबर होने वाला है, आई विल बी नंबरिंग इट 4, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू सी प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। अब जो ट्रेन्स का क्वेश्चन है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखने मिल जाएगा, हर एग्जाम में। जस्ट नेम इट, कैट, जैट, स्नैप, एनमैट, माई कैट, सी मैट, SRCC एंड ऑल, जितना एग्जाम होता है हर एग्जाम में ट्रेन्स का क्वेश्चन देखने मिलेगा। तो ट्रेन्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो ट्रेन्स के लिए हम देखने वाले हैं सिंपल, हर चीज़ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है, ओके। तो यहाँ पे भी इसके ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करेगा, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे 2-3 केस होता है, वो हम लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ट्रेन एक होता है, ये मान लो कि एक ट्रेन है, ठीक है, एंड इसके जो भी है बोगीज़ है, फाइन। सो ये एक ट्रेन है, तो एक ट्रेन का एक लेंथ होता है जिसको हम लोग लेंथ ऑफ ट्रेन ऐसे मान लिया, ओके। तो ये ट्रेन का जो लेंथ होता है ना, ये भी डिस्टेंस में काउंट होता है, ठीक है, ओके। अगर दूसरा और एक ट्रेन का बात हो रहा है, इसका भी कुछ लेंथ होगा, ठीक है। तो डिस्टेंस में लेंथ ऑफ T1 इसको और लेंथ ऑफ T2 ये दोनों काउंट होगा, ठीक है। अगर दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, कि दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस काउंट होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखना है। आई होप मेरा बात समझ में आया होगा कि लेंथ का, ट्रेन का एक लेंथ होता है, उसको भी डिस्टेंस में काउंट करते हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स विथ लेंथ, ऑब्जेक्ट्स विदाउट लेंथ। ट्रेन एक ऑब्जेक्ट विथ लेंथ है, एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट लेंथ क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट्स विथ लेंथ। ऑब्जेक्ट्स विथ लेंथ क्या क्या हो सकता है? ऑब्जेक्ट्स विथ लेंथ हो सकता है ट्रेन्स, प्लेटफॉर्म्स, और क्या क्या हो सकता है, ब्रिजेस हो सकता है, और यही हो सकता है, ठीक है। अनदर ट्रेन, तो वो तो हम बताए हो सकता है। बट नाउ ऑब्जेक्ट्स विदाउट लेंथ, जिसका लेंथ नहीं है, वो क्या क्या हो सकता है? वो हो सकता है अ पर्सन, हो सकता है एक पोल, हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है ऑब्जेक्ट्स विदाउट लेंथ? डॉग हो सकता है, ट्री हो सकता है, एट्सेट्रा, और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी हम तुमको क्यों बताएं कि ऑब्जेक्ट्स विद लेंथ क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट लेंथ क्या होता है, वो अभी हम तुमको दिखा रहे हैं। क्योंकि मान लो एक ट्री है, ठीक है, सपोज एक ट्री है, और ये एक ट्रेन है, ठीक है। तो ये ट्रेन जब इस ट्री को क्रॉस करेगा तो इसका जो लेंथ है वो नेग्लिजिबल है। तो यहाँ पे जब हम लोग डिस्टेंस देखेंगे तो वो सिर्फ डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन देखेंगे। बट जब हमारे पास एक ट्रेन है और एक सिमिलर ट्रेन क्रॉस कर रहा है उसको, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन 1 एक है, ठीक है, और यहाँ पे L1 L2 मानते हैं, ठीक है। तो ट्रेन 1 का लेंथ L1 है, यहाँ पे ट्रेन 2 का लेंथ L2 है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2, जो हम पहले बोले थे सेम बात, ओके। तो ये इम्पोर्टेंस है ट्रेन का लेंथ का। बट अब हम लोग देखने वाले हैं 4 केसेस, ठीक है। पहला ये है ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, ऐसे में क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूला में सब बेस्ड है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम लोग लिखते हैं, बट ये एक्चुअल फॉर्मूला नहीं है। मतलब हम कहना क्या चाहते हैं, ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, तो उसका कोई लेंथ नहीं है, तो लेंथ सिर्फ ट्रेन का होगा, तो डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन। स्पीड तो कुछ है नहीं ऑब्जेक्ट का, स्टेशनरी है, सिर्फ ट्रेन का स्पीड है,
तो स्पीड ऑफ ट्रेन इनटू टाइम। तो ये हो गया हम लोग का जब ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। यहाँ पे डिस्टेंस में ट्रेन का स्पीड और ऑब्जेक्ट का लेंथ, ट्रेन का लेंथ एंड ऑब्जेक्ट का लेंथ दोनों ऐड होगा, तो डिस्टेंस, ट्रेन का लेंथ, ऑब्जेक्ट का लेंथ। ऑब्जेक्ट अभी भी स्टेशनरी है तो स्पीड सिर्फ ट्रेन का होगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन एंड टाइम तो टाइम है। फाइन, तो ये होगा फॉर्मूला जब ट्रेन क्रॉसिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। नेक्स्ट ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। दो केसेस है इसमें, इसके अंडर अपोजिट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन। तो देखेंगे हम लोग ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ। ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है, ओके। सेकेंड सेम डायरेक्शन में हो सकता है। तो ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विदाउट लेंथ, अभी भी ऑब्जेक्ट का कोई लेंथ नहीं है, सिर्फ ट्रेन का है, तो डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन। बट ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूविंग है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूविंग है और अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड ऐड होता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक्चुअली में क्या है तो रिलेटिव स्पीड ही ना, तो इनटू टाइम। ये हो गया अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में अगेन डिस्टेंस तो लेंथ ऑफ ट्रेन ही है, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड, सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड माइनस हो जाएगा, विच इज स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, फाइन, इनटू टाइम, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लास्ट केस विच इज ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ट्रेन क्रॉसिंग मूविंग ऑब्जेक्ट विथ लेंथ। अब इस केस में भी दो हमारे पास केस है। फर्स्ट अपोजिट डायरेक्शन, सेकेंड सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के पास भी लेंथ आ चुका है ट्रेन के साथ, तो डिस्टेंस की जगह लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों का स्पीड भी है क्योंकि ऑब्जेक्ट भी मूविंग है, ट्रेन भी मूविंग है, तो अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू टाइम, फाइन। नाउ फॉर सेकेंड केस विच इज सेम डायरेक्शन, डिस्टेंस तो वही होगा दोनों का, डिस्टेंस ट्रेन एंड ऑब्जेक्ट, एंड स्पीड सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाता है, तो स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इनटू टाइम। सो दीज वेयर 4 केसेस जो हमें ध्यान रखना है। ज़्यादातर डी वाला केस जो है वो आता है क्वेश्चंस में, बट मेन इसका टेक अवे ये नहीं है कि तुमको ये सब जो फॉर्मूलाज हम लिख के दिए हैं एंड ये सब जो हम बताए हैं ये सब तुमको रटना है, रटना नहीं है तुम लोग को। ये सब तुमको लॉजिकली समझना, अपने दिमाग में बैठाना है कि जब ज़रूरत पड़े तो कैसे यूज़ करना है इन फार्मूलाज को, कैसे लगाना है। कहीं तुमको क्वेश्चन में दिख जाए कि अच्छा लेंथ ऑफ ट्रेन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों है तो ओके ऐड कर देंगे, अपोजिट डायरेक्शन में है तो, सेम डायरेक्शन में तो माइनस कर देंगे, ठीक है। एब्रीवेशन तो तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि LT मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन, LO मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ST मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन, SO मतलब स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड T इज इक्वल्स टू टाइम। तो इतना जो अभी मैंने बताया, इससे तुम लोगों का प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स जो है वो सारा का सारा कवर हो जाएगा। एंड अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो कि है बोट्स एंड स्ट्रीम, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी बोट्स एंड स्ट्रीम। तो इसमें हम लोग देखने क्या वाला है, ओके। सो अब हम लोग देखने वाले हैं बोट्स एंड स्ट्रीम। बोट्स एंड स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का एक्चुअल मतलब क्या होता है, स्ट्रीम का मतलब होता है
वाटर फ्लो का डायरेक्शन, वो अपस्ट्रीम में है या फिर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है बोट के साथ। डाउन स्ट्रीम कहने का मतलब है कि जो बोट है वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, बोट भी इधर जा रहा है, स्ट्रीम भी इधर जा रहा है, तो वो डाउन स्ट्रीम हुआ, ठीक है, मतलब अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। एंड अपस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, बोट जो है वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में के ओपोजिट जा रहा है, मतलब अगेंस्ट द स्ट्रीम जा रहा है। तो ये है बोट्स एंड स्ट्रीम का ओवरऑल जो कहानी होता है। अब इसमें भी दो केस है। पहला ये है स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पे भी वही डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही सब लगने वाला, कुछ यहाँ पे डिफरेंट नहीं लगने वाला, बट वही है कि कॉन्सेप्ट ऐसे कहानी के ये में पता होना चाहिए, तो हम लोग उसके ऊपर में बात कर रहे हैं, ठीक है। सो स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम हम लोग देखने वाला है। स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग डाउन स्ट्रीम। अब डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, बोट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और वाटर भी इसी डायरेक्शन में बह रहा है, तो स्पीड क्या होगा, ऐड हो जाएगा दोनों का, ठीक है। यहाँ पे वो वाला रिलेटिव स्पीड नहीं है कि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो अच्छा माइनस हो जाएगा। यहाँ पे दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एक दूसरे को धक्का दे रहा है, तो ऐड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है डाउन स्ट्रीम है, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। अब जो नेक्स्ट केस है वो है स्पीड ऑफ बोट ड्यूरिंग अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, बोट जाने की कोशिश कर रहा है इस डायरेक्शन में, और जो वाटर का फ्लो है वो इस डायरेक्शन में है, ये हुआ अपस्ट्रीम। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। और यहाँ पे हमेशा यही केस होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि स्पीड ऑफ वाटर माइनस स्पीड ऑफ बोट। ऐसा क्यों, क्या कोई मेरे को बता सकता है ऐसा क्यों? सोचो सोचो सोचो, पॉज करो और सोचो। ऐसा इसीलिए है क्योंकि बोट जा रहा है अपस्ट्रीम की तरफ, वाटर के उल्टा डायरेक्शन में जा रहा है। इफ़ यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो, वाटर का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ आ रहा है, ठीक है, वाटर का डायरेक्शन ऐसे इस तरफ बह रहा है ना, इस तरफ, एंड बोट जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, तो बोट ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है। और स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, तो वाटर माइनस बोट, स्पीड ऑफ वाटर माइनस स्पीड ऑफ बोट हम लोग न्यू नहीं कर सकते क्योंकि वो नेगेटिव होगा हमेशा, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ वाटर, तभी ना वो ऊपर जाएगा। अगर तुम किसी बोल्डर को माउंटेन के ऊपर पुश कर रहे हो, अगर तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो ग्रेविटी एंड ऑल से जो फोर्स लग रहा है उससे ज़्यादा है, तभी बोल्डर ऊपर जा पाएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि वाटर का स्पीड मतलब ग्रेविटी एंड ऑल का फोर्स ज़्यादा है और तुम्हारा फोर्स कम है तो भी तुम ऊपर पुश कर दोगे, तुमको फोर्स को ज़्यादा देना पड़ेगा। वैसे ही बोट का स्पीड जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ वाटर, तभी बोट ऊपर की ओर बढ़ पाएगा। यही है दो केस इसका। एंड इसका एक शॉर्टकट जो फॉर्मूला है वो याद मतलब होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद रखना, जो भी हम बता रहे हैं फॉर्मूलाज याद रखना। उसका शॉर्टकट फॉर्मूला ये है कि मान लो तुमको स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम ये दिया हुआ है, एंड तुमको बोले कि स्पीड ऑफ बोट या तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम या तो स्पीड ऑफ वाटर फ्लो, ठीक है, निकालो, तो क्या फॉर्मूला होगा? तो यहाँ पे सिंपल स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम बाई 2, ये होगा स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला। एंड स्पीड ऑफ वाटर का फॉर्मूला होगा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बाई 2। ओके, ये सिंपल फार्मूलाज है, किसी किसी क्वेश्चन में यूज़ होता है ताकि तुम लोग इजीली निकाल सको वैल्यू, तो वैसे निकलेगा, ठीक है। अगर इसका प्रूफ जानना, अच्छा ठीक है, हम ये भी बता देते हैं कि ये कैसे हुआ। ओके, तो इसका प्रूफ ऐसे होगा कि स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम हमें पता है क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर। ओके, और स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ओके, ये भी ठीक है। अब अगर हम स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बाई 2 कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ वाटर प्लस स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर बाई 2, विच कम्स आउट टू बी 2 स्पीड ऑफ बोट बाई 2, दिस कम्स आउट टू बी स्पीड ऑफ बोट। सो इवेंचुअली स्पीड ऑफ बोट क्या आया, स्पीड ऑफ बोट
स्पीड ऑफ बोट आया हमारे पास स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम बाई 2, और यही हम यहाँ ऊपर में लिखे हैं। ओके, सिमिलर वे में हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं, माइनस माइनस करके -n डिवाइड बाई 2। ओके, तो ये था बोट्स एंड स्ट्रीम। अब हम लोग देखेंगे एस्केलेटर्स। ठीक है, एस्केलेटर्स इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड एन इंटरेस्टिंग वन। तो हम लोग देखने वाले हैं अब प्रॉब्लम्स ऑन एस्केलेटर। एस्केलेटर का मतलब क्या होता है, पहले ये पता होना चाहिए। कोई एलिवेटर और एस्केलेटर में लाइक थोड़ा कंफ्यूज रहता है, तो हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट होता है सिंपली, एंड एस्केलेटर वो होता है जो हम वॉल्स में चढ़ते हैं, तो जो ऑटोमेटिक स्टेयर्स अपने आप जो चलते रहते हैं ना बेल्ट में, और हम चढ़ते हैं, हमें चढ़ा दिया जाता है, उसे एस्केलेटर बोलते हैं। ओके, ऑटोमेटिक मूविंग स्टेयर्स को एस्केलेटर बोलते हैं। अब यहाँ पे भी सिंपल, अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और जो इंसान चढ़ा उसको भी ऊपर जाना है, तो दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा और जल्दी पहुंच जाएगा इंसान। अगर एस्केलेटर ऊपर जा रहा है और इंसान इसमें नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये तो जो स्पीड देगा, ये स्पीड इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, दोनों माइनस हो जाएगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा नीचे आने में। तो एस्केलेटर इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। बट यहाँ पे हम लोग स्पीड, ये यहाँ पे भी वही डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के ऊपर ही सब डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे डिस्टेंस को हम लोग नंबर ऑफ स्टेप्स में काउंट करते हैं, स्पीड को हम लोग स्टेप्स पर सेकेंड में काउंट करते हैं, एंड टाइम को सेकेंड में काउंट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हमें एस्केलेटर चढ़ने में सेकेंड्स का ही टाइम लगता है एंड कुछ स्टेप्स ही लगता है, ज़्यादा नहीं। तो हम ऐसे काउंट करते हैं। जो अभी हम बताएं स्पीड, कैसे हम लोग इफेक्टिव स्पीड कैलकुलेट करते हैं एस्केलेटर के केस में, तो पहला केस वही है कि ये एक स्टेयर है और ये ऊपर की ओर जा रहा है, और ये एक आदमी है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ऐसे केस में जो इफेक्टिव स्पीड है वो p प्लस ई हो जाएगा, वेयर p इज स्पीड ऑफ पर्सन, e इज स्पीड ऑफ एस्केलेटर। एंड सेकेंड केस जहाँ पे अगेन एक हमारे पास स्टेयर है और ये स्टेयर नीचे की ओर आ रहा है, और हमारे पास एक इंसान है जो ऊपर की ओर जाना चाहता है। अब यहाँ पे ऊपर तो वो इवेंचुअली जाएगा ही, तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगा, p माइनस ई, वेयर p इज स्पीड ऑफ द पर्सन एंड e इज स्पीड ऑफ द एस्केलेटर। ठीक है, अब जो हम यूनिट्स का बात कर रहे थे कि हम लोग किस यूनिट्स में कैसे देखते हैं, तो अभी हम यूनिट्स का बात कर रहे थे। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम है, वहाँ पे कौन सा यूनिट्स यूज होता है। डिस्टेंस के लिए जो यूनिट होता है वो होता है नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, एंड स्पीड के लिए होता है स्टेप्स पर सेकेंड, एंड टाइम के लिए जो यूनिट होता है वो होता है सेकेंड। ठीक है, यही जो है इसका यूज़ किया जाता है, और हमें पता है जब डायरेक्शन सेम है तो नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू, डायरेक्शन सेम है तो p प्लस ई इंटू टी। बट जब ओपोजिट डायरेक्शन है तब अगेन नंबर ऑफ स्टेप्स इज इक्वल टू p माइनस ई इंटू टी। और ये इवेंचुअली ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि n इज इक्वल टू पी टी प्लस ई टी, या फिर n इज इक्वल टू पी टी माइनस ई टी। और ये पी टी जो है, पी टी क्या है, पी टी है डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन। ओके, और ये जो ई टी है, ई टी ये क्या है, ये है डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्केलेटर। ये चीज़ दिमाग में रखो कि पीटी होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन एंड ईटी होता है डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्केलेटर, क्योंकि कभी कभी पूछा जाता है कि व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय पर्सन एंड व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एस्केलेटर, तो वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इफेक्टिव स्पीड भी हमने देखा कि इफेक्टिव स्पीड p प्लस ई हो जाता है जब सेम डायरेक्शन में हो, जब अपोजिट डायरेक्शन में तो p माइनस ई हो जाता है। ओके, पी टी प्लस ई टी एंड पी टी माइनस ई टी वाला केस भी हमने देख लिया। और यहाँ पे जो हमने एवरेज स्पीड का वो देखा था कि जब डिस्टेंस सेम है और हम जा रहे हैं एंड आ रहे हैं विथ S1, आ रहे हैं विथ S2, तो एवरेज
स्पीड का फॉर्मूला क्या था, 2s1s2 बाई s1 प्लस s2। सिमिलरली यहाँ पे एस्केलेटर में भी एक फॉर्मूला है कि स्टेयर्स सेम है, मतलब n नंबर ऑफ स्टेप सेम है, d सेम है, तो जा रहा है ऊपर तो उसको t1 टाइम लग रहा है, नीचे आ रहा है तो उसको t2 टाइम लग रहा है। तो पूछा जा सकता है जब ये t1 टाइम है वो तब लग रहा है जब एस्केलेटर ऊपर जाते हुए उसको हेल्प कर रहा है, t2 टाइम उसको तब लग रहा है जब एस्केलेटर डाउनवर्ड मूविंग में हेल्प कर रहा है। तो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पर्सन टू कवर एस्केलेटर व्हेन एस्केलेटर इज स्टेशनरी। तब हमारे को जो टाइम लगेगा वो ये वाला फॉर्मूला के ऊपर ही है, 2t1t2 बाई t1 प्लस t2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला है जो लगता है, जो कि सेम है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्कुलर ट्रैक्स। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स सर्कुलर ट्रैक्स, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सर्कुलर ट्रैक्स, एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ सर्कल, सो दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक दो इंसान रहता है, या तो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है, ओके, या तो ऐसा होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहा है। तो पूछा जा सकता है कि कितना डिस्टेंस कवर करा, या फिर कितना टाइम में मीट कर रहा है, कितना पॉइंट्स में मीट कर रहा है। ठीक है, अगर इस पॉइंट में मीट करा तो स्टार्टिंग पोजीशन से कितना डिस्टेंस में है। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है सर्कुलर के ऊपर। सिमिलर अगेन हमें यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का ही यूज़ करना है, बट यहाँ पे भी रिलेटिव स्पीड वो जो पहले हम लोग सीखे थे वैसा वाला आ जाता है। कैसा वाला आ जाता है, मान लो कि हमारे पास दो पर्सन है और ए एंड बी। ए इधर मूव कर रहा है विथ 4 मीटर पर सेकेंड एंड बी इधर मूव कर रहा है सेम डायरेक्शन में विथ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 4 1 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मतलब सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड माइनस हो जा रहा है। ओके, मेरा कहने का मतलब है रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू s1 माइनस s2। ये हम सिर्फ लिख दिए, वो डिपेंड करता है कि किसका स्पीड ज़्यादा है एंड किसका स्पीड कम है व्हेन डायरेक्शन इज सेम। Similarly, we have another circle and we have two people. A is running from in this side and B is running in this side, which is opposite direction. तो opposite direction में क्या होता है, opposite direction में relative speed हो जाता है s1 माइनस s2। सिमिलर जो हम लोग पहले सीखे थे, सिमिलर। अब यहाँ पे और एक केस ऐसा हो जाता है, मान लो कि दो इंसान दौड़ रहा है, ठीक है, और A दौड़ रहा है विथ अगेन 4 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड बी इज़ रनिंग विथ सपोज 8 मीटर पर सेकेंड स्पीड। ठीक है, तो यहाँ पे ए रन कर रहा है तो ए पीछे दौड़ेगा। ठीक है, ए पीछे दौड़ेगा, पीछे पीछे, और बी उससे दौड़ते हुए आगे निकल जाएगा स्टार्ट में ही। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की बात है कि जब बी वापस दौड़ कर किसी पॉइंट में, मानते हैं इस पॉइंट में कि वापस दौड़कर ए से मिलेगा, तो यहाँ पर बी ए से एक राउंड ज़्यादा कवर कर चुका होगा। मेरा कहने का मतलब है व्हेन फास्टर रनर मीट्स द स्लोअर रनर फॉर द फर्स्ट टाइम, द फास्टर रनर वुड हैव कवर्ड 1 राउंड मोर देन द स्लोअर रनर। ओके, इसको तुम लोग अपने वर्ड्स में लिख लेना। तुम लोग चाहो तो जस्ट इमेजिन भी कर सकते हो कि ये ए यहाँ से दौड़ना चालू किया, दौड़ रहा है, तब तक बी दौड़ रहा है और उसका स्पीड ज़्यादा है, तो वो दौड़ते जब तक ए वहाँ तक पहुँचा तब तक यहाँ तक पहुँच गया। फिर जब तक ए पहुँचा यहाँ तक तब तक बी ऐसे एक राउंड मार के यहाँ तक पहुँच गया। तो ए अभी तक यहीं पर पहुँचा है, पर बी एक राउंड ज़्यादा मार के यहाँ वापस उससे मिल चुका है। तो समझ में आया कि एक राउंड ज़्यादा है। ठीक है, जो फास्टर रनर है वो जब स्लोअर रनर से मिलता है, जब भी सेम डायरेक्शन में दो रनर मूव हो रहे हैं, तो जो फास्टर वाला ओवरटेक करके फिर से मिलेगा स्लोअर से, तो फास्टर का एक राउंड स्लोअर से ज़्यादा होगा। आई एम राइटिंग दिस, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ फास्टर is equal to 1 plus rounds of slower। ठीक है, नंबर ऑफ राउंड्स ऑफ स्लोअर।
और यहाँ पे भी अगेन वही सेम, लेंथ ऑफ द ट्रैक को हम लोग L मान लेंगे, स्पीड अगर सेम डायरेक्शन में है तो S1 माइनस S2 इंटू टाइम, ठीक है, सेम डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो लेंथ ट्रैक का L मान लेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा तो S1 प्लस S2 एंड टाइम, ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो दिखा ही नहीं तुम लोगों को। अच्छा, इसको ऊपर कर देते हैं क्या, हम भी इधर ओके। सो आई होप आपको समझ में आया, सेम डायरेक्शन में स्पीड माइनस अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस, जैसा हम लोग पहले कर रहे थे। सो द पॉइंट्स जो हमें यहाँ पे याद रखना है कि when two runners have started at same time from same point and they are running in same direction, then during the first meeting the faster runner always cover one round more than the slower runner. The second point is when two runners have started at same time from same point and they are running in opposite direction, then during their first meeting the faster and slower runner together cover one round. ये भी सही बात है ना कि A और B opposite डायरेक्शन में दौड़ना चालू किया और ये दौड़ते दौड़ते भी यहाँ तक पहुँच गया और ये ए यहाँ तक पहुँचा, तो टुगेदर एक राउंड ही कवर करा ना। तो वही बात है कि व्हेन टू रनर्स हैव स्टार्टेड एट सेम पॉइंट फ्रॉम सेम टाइम फ्रॉम सेम पॉइंट एंड दे आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, देन ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग द फास्टर एंड स्लोअर रनर टुगेदर कवर वन राउंड। एंड थर्ड एंड फोर्थ इज द इक्वेशंस जो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, इफ़ यू कैन सी कि ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन सेम डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो दिस इज हाउ वी राइट, opposite डायरेक्शन में दौड़ रहा है तो दिस इज हाउ वी राइट, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, S इज स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन, S2 इज स्पीड ऑफ सेकेंड पर्सन, T इज टाइम टेकन टू कवर वट एवर एंड ऑल, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स। जब हम बता रहे थे, इसको इंट्रोड्यूस कर रहे थे, तभी हम बोले थे कि हमें सर्कुलर ट्रैक में नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स भी पूछा जा सकता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स कैसे निकालते हैं, कि कितना पॉइंट्स पे मीट करेंगे, ओके कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट व्हेन दे मीट फॉर द फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम, है ना, कैसे भी करके। तो सपोज दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक एंड इसका लेंथ है 300 मीटर्स और यहाँ पे है अ पर्सन A एंड अ पर्सन B. A is moving with 15 meter per second, B is moving with 10 meter per second. Again we have the same track of length 300 meters, but यहाँ पे A is moving in this direction with 15 meter per second and B is moving in this direction with 10 meter per second. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मीटिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? तो मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले जो दोनों का स्पीड है उसका रेशियो लिख लेंगे, A/B लिख लिए। अब पहले हम देख रहे हैं सेम डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं मीटिंग पॉइंट्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में कैसे निकालते हैं मीटिंग पॉइंट्स। तो सेम डायरेक्शन में सबसे पहले दोनों में रेशियो निकालना होता है, तो रेशियो निकालेंगे A/B। A का स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड और B का स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। स्पीड का रेशियो निकालेंगे, ठीक है, विच कम्स आउट टू बी 3:2। एंड यहाँ पे भी हमें सेम स्टेप करना है, A/B 15:10 3:2। ओके, अब सेम डायरेक्शन में जो दोनों का रेशियो आया स्पीड का, उसको हम लोग क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में हम कर देंगे उसको माइनस, ओके, क्योंकि वो ऑब्वियसली रिलेटिव स्पीड में भी हम माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर भी सेम डायरेक्शन में हम डिफरेंस लेंगे। तो डिफरेंस लेंगे 3 - 2 = 1, ये आ गया मीटिंग पॉइंट। इसका मतलब क्या है, वो एक ही जगह पे मिलेगा और वो एक जगह कौन सा होगा, वो एक जगह होगा स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि वहीं से वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं और वो लोग मिल रहा है ना वहाँ से, तो वो होगा स्टार्टिंग पॉइंट। अब जब अपोजिट डायरेक्शन में देखेंगे तो ऐड कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, ऐड। सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं, ओके। तो ऐड कर देंगे 3 + 2 = 5। तो 5 पॉइंट्स ऑफ मीटिंग होगा और हमेशा जो पॉइंट्स ऑफ मीटिंग होता है वो इक्वी डिस्टेंट होता है। सो गाइज, नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स जो होता है वो हमेशा इक्वी डिस्टेंट होता है, ये बात हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे जब हमारे पास 5 मीटिंग पॉइंट्स आया तो हम 5 मीटिंग पॉइंट्स बनाते हैं जो कि इक्वी डिस्टेंट हो एक दूसरे से, ओके, और ये इसको एक स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं।
तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है, पता कैसे चलेगा कि फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ पे हुआ, सेकंड मीटिंग पॉइंट कहाँ पे हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास ए एंड बी का जो रेशियो था वो 3:2 आया था, और ए किस डायरेक्शन में जा रहा था, मान लेते हैं कि ए अभी इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपल, यहाँ से स्टार्ट किया है, दो दो काउंट करेंगे एंड 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग होगा, 1 2 यहाँ पे सेकंड मीटिंग होगा, 1 2 यहाँ पे थर्ड मीटिंग होगा, 1 2 यहाँ पे फोर्थ मीटिंग होगा, 1 2 यहाँ पे फिफ्थ मीटिंग होगा। ओके, तो जो लास्ट पॉइंट होता है ना वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि रेस तो हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट में ही खत्म होता है ना, चालू और स्टार्ट वहीं से होता है। तो अगर आपका वो नहीं आ रहा है तो कुछ गलती करा आपने। और अगर हम मान लेते हैं 2 1 2 करके नहीं, इस डायरेक्शन से करते, ए को देखते तो भी सेम ही आता। कैसे, हम फिर से ए के लिए भी करते हैं। यहाँ पे देखो 3 काउंट करेंगे, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से, रुको, 3 काउंट करेंगे यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट से। ओके, सो यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे फर्स्ट मीटिंग पॉइंट होगा, 1 2 3, तो यहाँ पे सेकंड मीटिंग पॉइंट होगा, 1 2 3, यहाँ पे थर्ड मीटिंग पॉइंट होगा, 1 2 3, यहाँ पे फोर्थ मीटिंग पॉइंट होगा, 1 2 3, यहाँ पे फिफ्थ मीटिंग पॉइंट होगा। तो अगेन सेम आ गया ना हमारे पास जो 1 2 3 4 5 था। अगर यही हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मीटिंग पॉइंट है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा, सिंपल, ठीक है। तो ऐसे हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ मीटिंग पॉइंट्स, और सिर्फ काउंट ही नहीं करते, डिपिक्ट भी करते हैं कि कितना डिस्टेंस में होगा। अगर ये इसका डिस्टेंस कितना था, लेंथ ऑफ ट्रैक हमने माना था 300 मीटर। 300 मीटर को 5 इक्विडिस्टेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं तो 60 मीटर्स पर स्ट्रेच, ये जो एक स्ट्रेच है ये 60 मीटर्स का हो जाएगा। लॉजिकली सोचना है, ठीक है, और कोई चीज़ नहीं है, और कोई मुश्किल नहीं है। अब हम एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लेते हैं। मान लो कि ये एग्जाम्पल है हमारे पास, ये एक ट्रैक है, तो ये हमारे पास ट्रैक है, सेम ट्रैक है, ठीक है, लेंथ अगेन हमारे पास 300 मीटर्स है। ओके, एंड स्पीड भी सेम है, तो हमारे पास, और स्पीड सेम है, ए इस डिस्टेंस में जा रहा है एंड बी इस डिस्टेंस में जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें पता है कि हमें सबसे पहले रेशियो लेना है, A:B, 15:10, 3:2, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो 3 + 2, 5 पॉइंट्स ऑफ मीटिंग, तो 5 पॉइंट्स ऑफ इक्विडिस्टेंट बना देंगे, और ये है स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे 3:2 है तो इस डायरेक्शन में 2 करके लिखते हैं जैसे बताए थे, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4 एंड दिस इज़ फिफ्थ एंड स्टार्टिंग मीटिंग पॉइंट, लास्ट मीटिंग पॉइंट। ओके, अब हमारे पास मान लो पूछ रहा है ए एंड बी का 47th मीटिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस पे। अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछे तो हम कैसे बनाएंगे, सिंपल है, कोई उतना मुश्किल नहीं है, बट आई विल शो यू हाउ टू डू दैट। सबसे पहले तो हमने ये कर लिया 1 2 3 4 5 कि वो लोग का फर्स्ट मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा, सेकंड मीटिंग पॉइंट कहाँ पे होगा। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बोल रहा है 47th मीटिंग पॉइंट होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस में होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 47th मीटिंग, अभी 5 5 5 5 तक 45 तक जाएगा, फिर 46, 47th मीटिंग पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, 45 हमारा यहाँ पे आएगा, 46 यहाँ पे आएगा, 47 यहाँ पे आएगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है 47th मीटिंग पॉइंट। अरे, तो वो वाला जो पॉइंट था वो पॉइंट है 47th मीटिंग पॉइंट, एंड ये वाला पॉइंट 47 मीटिंग पॉइंट है, ये स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, एक स्ट्रेच के डिस्टेंस पे है। और ये एक स्ट्रेच कितना डिस्टेंस है इसका, 300 डिवाइड बाई 5 विच इज 60 मीटर्स। तो आंसर अगेन 60 मीटर्स। आई होप कि आपको ये सर्कुलर ट्रैक वाला समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट, एंड हम कहना क्या चाहते हैं वो समझ में आया होगा। नाउ सपोज कि 2 जन से ज़्यादा है, 3 जन है, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, A, B, C, 3 जन है, स्पीड ऑफ A मान लेते हैं 12 मीटर पर सेकेंड है, B का 15 है, C का 20 है, ठीक है। तो अब हमें कैसे पता करना होगा कि कितना मीटिंग पॉइंट्स होगा ये तीनों का, कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 पेयर बनाते हैं, उसका सेम डायरेक्शन में है तो डिफरेंस ले रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड करेंगे। यहाँ पे सेम डायरेक्शन में 2 पेयर बनाते हैं, स्पीड ऑफ A, B और C, ठीक है। तो A 12 है, B 15 है, C 20 है, तो 2 पेयर बनाएंगे। सबसे पहले 12 और 15, और एक पेयर बना लेते हैं 15 और 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में तो डिफरेंस निकालेंगे, 12 - 15 इज़ 3 एंड 15 - 20 इज़ 5। अब जो हमारे पास नंबर आया उसका
हाँ HCF निकाल लेंगे, और इसका HCF क्या होगा, HCF होगा 1, तो इसका सिर्फ एक ही मीटिंग पॉइंट होगा। अगेन हमारे पास एक सर्कल होता जहाँ पर A इस डायरेक्शन मूव करता, B इस डायरेक्शन मूव करता, C इस डायरेक्शन मूव करता, सेम स्पीड है जो यहाँ पे है, सेम स्पीड है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता, A इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, B अपोजिट में कर रहा है, C इस डायरेक्शन में कर रहा है, और स्पीड है सेम। अगेन हम पेयर बनाएंगे, डिफरेंस नहीं, यहाँ पे दोनों A और B का जो पेयर है उसका डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं, यहाँ पे ऐड करेंगे 12 प्लस 15 विच इज़ 27, एंड इन दोनों का जो डायरेक्शन है B और C का वो भी अपोजिट है, तो वो भी ऐड होगा, और ऐड होगा तो हाउ मच, 35। और अब इन दोनों का HCF निकलेगा, और HCF कितना निकलेगा पता है हमें, 1 निकलेगा अगेन। तो अगेन यहाँ पे सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट में ही मिलेगा। ओके, आई होप कि आपको ये एग्जांपल से समझ में आया होगा कि अगर 2 से ज़्यादा होता है तो क्या करना होता है। यहाँ पे निकालना होता है HCF, ठीक है, HCF निकालना होता है, 2 के पेयर बनाने होते हैं, फिर डायरेक्शन के हिसाब से अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो ऐड, और अगर सेम डायरेक्शन है तो माइनस, और उसके बाद हम HCF निकालते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर ट्रैक्स यहाँ पे हो गया उसका गेम ओवर। अब हम जाते हैं नेक्स्ट, जो कि है प्रॉब्लम्स ऑन रेसेस। प्रॉब्लम्स ऑन रेसेस, इसका मतलब है रेस, जो हम लोग दौड़ते हैं उसके ऊपर अब हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग एक्चुअली में बात क्या करना चाहते हैं, इसका हम लोग को क्वेश्चन कैसा आता है, इसमें हमें ऐसा क्वेश्चन आता है कि A बीट B बाई 100 मीटर्स, ठीक है, इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर्स A बीट B बाई 100 मीटर्स, या फिर ऐसा दिया रहेगा A गिव्स B अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर्स, या फिर ऐसा दिया रहेगा कि A गिव्स B अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर्स एंड रेस एंडेड इन अ डेड हीट। डेड हीट मतलब कट टू कट टाइम में, ठीक है। और ऐसा दिया सकता है कि A बीट्स B बाई 90 सेकेंड्स। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस, मतलब डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो दिया रहेगा रेसेस के प्रॉब्लम में, बट यहाँ पे आपको क्या चीज़ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही चीज़ पे ध्यान रखना है, यूज रेशियो टू सॉल्व क्वेश्चंस इन प्रॉब्लम्स ऑफ रेसेस। में रेशियो से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैसे, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल, ठीक है, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एक एग्जांपल लेते हैं सिंपल। एक रेस है 600 मीटर्स का, ठीक है। अजय बीट्स विजय बाई 60 मीटर्स, एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स विजय बीट अंजन बाई 25 मीटर्स। तो 600 मीटर्स के रेस में अजय जो है वो विजय को 60 मीटर से बीट कर रहा है, ठीक है। एंड इन अ रेस ऑफ 500 मीटर्स विजय जो है वो अंजन को 25 मीटर से बीट कर रहा है, ठीक है। ये है अजय, ये है अंजन, दोनों डिफरेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है बाय हाउ मेनी मीटर्स विल अजय बीट अंजन इन अ रेस ऑफ 400 मीटर्स। ये इसको कितना मीटर से हराएगा 400 मीटर के रेस में। सिंपल, हमें रेशियो लेना है। कैसे, अजय इज टू विजय, 600 मीटर का रेस है और अजय जीत रहा है, तो अजय पूरा का पूरा 600 मीटर कवर करेगा। विजय 60 मीटर से हार रहा है, तो विजय 540 मीटर्स कवर करेगा, ठीक है। इसको हम लोग 0 0 कट हो जाएगा एंड विल गेट 10:9। अब यहाँ पे विजय जो है और विजय और अंजन का हम लोग रेशियो निकालेंगे। 500 मीटर्स विजय जीत रहा है, तो विजय 500 मीटर्स टोटल कवर करेगा, और अंजन 25 मीटर्स से हार रहा है, तो अंजन 475 मीटर्स ही कवर करेगा। एंड हम लोग इसको अगर कट करें तो हमारे पास आ जाएगा 20, और ये आ जाएगा हाउ मच, 1 and 19, ठीक है, ऑब्वियसली। तो ये हमारे पास आ गया रेशियोज। अब हमारे को बोला जा रहा है कि इन अ रेस ऑफ 400 मीटर्स अजय अंजन को कितने मीटर से बीट करेगा। 400 मीटर्स का रेस है, अजय अंजन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एजे और ये दोनों का रेशियो को सेम प्लेटफॉर्म में लेके आएंगे। तो यहाँ पे हम वो करते हैं, अजय, विजय और अंजन सेम प्लेटफॉर्म में कैसे लेके आना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर आप देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे 10:9, यहाँ पे 20:19, यहाँ पे 9, यहाँ पे 20, मल्टीप्लाई करेंगे 200 एंड 180 एंड दिस कम्स आउट टू बी 171,
ठीक है। और ये 171 आ गया है और हमारे पास है क्वेश्चन कि अजय अंजन को कितना मीटर से बीट करेगा ना 400 मीटर रेस। यहाँ पे समझो बात को, ठीक है। तो 400 मीटर्स 200 मीटर्स जब अजय दौड़ रहा है तब अंजन सिर्फ 171 मीटर दौड़ पा रहा है। इसका मतलब कि 29 मीटर से हार रहा है अंजन जब 200 मीटर्स का रेस है। तो जब 400 मीटर्स का रेस होगा तो इससे डबल से हारेगा, तो इंटू 2 विच कम्स आउट टू बी 58 meters. Okay, so the answer is 58 for this questions. Okay, आपको लॉजिक और कैसे हम अप्लाई करे होंगे ये आपको समझ में आया होगा। अब और एक चीज़, कभी कभी ऐसा रहता है कि ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। ये बहुत सारा क्वेश्चन में काम आता है। ऐसे बोला जाएगा कि A बीट्स B बाई A मीटर्स, ठीक है। B बीट्स C बाई B मीटर्स, A बीट्स C बाई C मीटर्स। पूछेगा क्वेश्चन लेंथ ऑफ ट्रैक क्या है। ये क्या है? लेंथ ऑफ द ट्रैक। अब यहाँ पे हम लोग रेशियो से सॉल्व करेंगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा और बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हो सकता है कि गलत भी हो जाए, हो सकता है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ जाए, बट वो सब में झंझट में हम लोग को पढ़ना ही नहीं। हम लोग सिर्फ डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे और वो फार्मूला होगा डिस्टेंस और लेंथ ऑफ द ट्रैक इज इक्वल्स टू ए बी बाई ए प्लस बी माइनस सी। ये फार्मूला बिल्कुल याद रखना। और यहाँ पे ए बी सी क्या डिनोट करता है? यहाँ पे ए बी सी ये डिनोट करता है। ए यहाँ पे जो है, बी यहाँ पे है, सी यहाँ पे है। ए का मतलब क्या है? ए बीट्स बी बाई ए मीटर्स, बी बीट्स बी बाई सी मीटर्स बी होता है, एंड ए बीट्स सी बाई सी मीटर्स। यही यहाँ पे ए बी बाई ए प्लस बी माइनस सी, ये है डिस्टेंस। इससे सीधा लेंथ ऑफ ट्रैक निकल जाएगा। और इसका हम अगर एक एग्जांपल दे, मान लो कि एक क्वेश्चन है इन अ रेस, ए बीट्स बी बाई 100 मीटर्स, ठीक है। बी बीट्स सी बाई हाउ मच? 200 मीटर्स, एंड ए बीट्स सी बाई 150 मीटर्स। सिंपल। और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैक। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल, डिस्टेंस इज इक्वल टू ए इंटू बी by a plus b minus c, which comes out to be 150 and which comes out to be 2000 by 15. ओके, अब ये जो आ रहा है वो आ रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, बट आई होप कि तुम लोगों को समझ में आएगा। डायरेक्ट अप्लाई करेंगे एंड लेंथ ऑफ ट्रैक सीधे ही आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं ये सारे चीज़। और अब जितना भी कॉन्सेप्ट्स था टाइम स्पीड डिस्टेंस का वो हम तुमको सिखा चुके हैं फ्रॉम ए टू जेड। इसके अलावा इसके बाहर तुम लोगों को किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो भी जितना भी मैंने पढ़ाया है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ सफिशिएंट टू स्कोर एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन जो भी आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में। तो अब हमारा यहाँ पे टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइम एंड वर्क कवर करने जा रहे हैं। ऑल्सो नोट्स बनाना, रिवाइज करना टाइम टू टाइम और अच्छे से समझना। कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। और कोर्स में इनरोल करो यार। कोर्स स्टार्ट हो चुका है, मेंटोरशिप सेशन स्टार्ट हो चुका है। सो लेट्स गो टू द एड। बहुत सारे बच्चे इनरोल कर रहे हैं फॉर द क्यूए डीमन मेंटरशिप टू हैव दैट अनफेयर एडवांटेज। और अगर आपको भी वो एडवांटेज चाहिए तो you should enroll in the QA Demon mentorship right now, because for the first 50 demons the cost is only $9.99 and my founding batch students will have a lifetime connection and mentorship from me. Even if you are enrolled in any other coaching, you will have an unfair advantage compared to others. Doesn't matter who you are a college student, working professional, full-time CAT aspirant or a CAT repeater, this course is for you. Enroll in the QA Demon right now. And to enroll in the QA Demon mentorship, you have to just fill the Google form present in the description or the pinned comment in this video. If you like the video, please like and subscribe to the channel. If you are liking the content, the quality of the content, share it with your friends जो भी prepare कर रहे हैं, जिनको proper mentorship चाहिए, quality content and quality mentorship चाहिए. Follow me on Instagram and LinkedIn for more interesting content. Thank you so much for watching the lecture. I will meet you again in the next lecture. Thank you so much and bye bye.